Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, clothing. Learning objectives, the need of clothes, different type of clothes, sources of clothes and care. Clothes is one of the basic needs of human. Have you ever wondered what clothes are made of? Do you know about charkha? Charkha or spinning wheel is used to spin fiber such as cotton into yarn. Fabric from this yarn can be used to make all sorts of clothing. देखिए क्लोथ भी हमारी बेसिक नीड्स में से एक है, लेकिन आपको पता है क्लोथ्स बने किससे होते हैं? क्लोथ्स आपके बने होते हैं फाइबर से, और उसके बाद क्या होता है फाइबर्स के साथ? स्पिनिंग व्हील, जिसे कि चरखा कहा जाता है, उसको यूज़ किया जाता है इन फाइबर्स को स्पिन करने के लिए। जैसे कि कॉटन फिर चेंज हो जाता है आपका, फिर यार्न में, फिर फैब्रिक बनता है यार्न से, देन उसके बाद आपकी क्लोथिंग्स बनती है। Long ago, early humans lived in caves and covered their bodies with leaves, animal skin or barks of trees. Slowly, they learned to make clothes using cotton, leather and silk. They started wearing different types of clothes. We need clothes all the time, at home, school, to play and for going to a party. Clothes are as important to us as food and a house to live in. The clothes we wear at home are different from the ones we wear to a party. अब देखिए पहले के टाइम पे जो लोग थे उनको पता नहीं था कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं, तो वो क्या करते थे, पेड़ की बाग से या फिर लीव से अपने बॉडीज़ को कवर करते थे। अब लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबने सीखा कि किस तरह से क्लोथ बनता है, लाइक कॉटन यूज़ करके, सिल्क यूज़ करके, वूल, लेदर यूज़ करके। तो क्लोथ भी हमारी एक बेसिक नीड्स में से एक है। जैसे कि हमें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, घर के रहने की ज़रूरत होती है, क्लोथ्स की भी हमें ज़रूरत होती है। और हम हर टाइम क्लोथ्स पहनते हैं, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम खेल रहे हैं। Why do we need clothes? We need clothes to protect ourselves from the scorching heat of the sun, cold, rain, and insect bites. The sun rays, especially during summers, can cause sunburns. We know that air around us contains dust. This dust settles on our clothes. We can see it on the collars and cuffs of our shirts and other clothes. Thus, our clothes form a protective layer between dust and our body. देखिए क्लोथ की ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि देखिए समर्स में सन की जो लाइट होती है कि काफ़ी ज़्यादा आपका ब्राइट होता है उस टाइम पे, स्कॉर्चिंग जो हीट होती है उसकी, वो हमारी बॉडी में सन बर्न कर सकता है। तो इसीलिए हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। और आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एंड उसमें आपकी गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो सारे ही डस्ट पार्टिकल्स हमारे क्लोथ्स में सेटल डाउन हो जाते हैं, और इस तरह से वो हमारी बॉडी को डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। Clothes protect us from insect bites. When we visit a park, we should wear full sleeve shirts and full bands to protect ourselves from mosquito bites. Mosquito bites can cause malaria, dengue and yellow fever. Clothes protect us from cold and keep us warm in winter. Clothes make us look smart. Clothes देखिए आपको इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मस्कीटो बाइट, अगर आप फुल स्लीव्स पहनते हैं, लाइक फुल स्लीव शर्ट्स है या पैंट्स है, तो आपको मस्कीटो बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड विंटर में आपके क्लोथ्स आपको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा क्लोथ पहन के हम स्मार्ट दिखते हैं। Different types of clothes. The clothes that we wear vary due to various conditions. Some of the factors that influence our clothing are the climate we live in, the occasion, the profession and the culture. अब क्लोथ्स जो है हम डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, हमेशा सेम कंडीशन हम सेम कपड़े नहीं पहनते हैं। लाइक हमारा प्रोफेशन क्या है, ओकेजन क्या है, किस तरह का क्लाइमेट है, उस सारी चीज़ों पे हमारे जो क्लोथ्स हैं वो डिपेंड करते हैं। Clothes according to the climate. We wear clothes according to the weather conditions of the place we live in. During summer, we wear loose, light colored cotton clothes. Cotton clothes allow air to circulate freely and the heat of the body escapes. White cotton clothes reflect heat and also absorb the sweat and prevents skin irritation. अब देखिए समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये लाइट होते हैं, एंड इसके अलावा हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं। तो इसके अलावा जैसे वाइट कॉटन क्लोथ्स हैं, हम गर्मियों के टाइम में वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट? In winter, we wear dark colored clothes made of wool. We get wool from the animals like sheep, goat and camel. Woolen clothes trap the body heat and keep us warm. Dark colored clothes absorb the sun's heat and help us to keep warm. अब विंटर में हम कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, हम पहनते हैं कौन से क्लोथ्स? आपके वुलन क्लोथ्स, क्योंकि ठंड होती है और हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो वुलन क्लोथ्स होते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। फैक्ट फाइल: इन टेक्सटाइल मिल्स फाइबर इज स्पन इनटू अ थ्रेड एंड द थ्रेड इज वोवन इनटू अ क्लोथ ऑन मशीन्स। जो आपकी टेक्सटाइल्स मिल्स होती हैं, सबसे पहले जो फाइबर है उसको स्पिन किया जाता है थ्रेड में, एंड देन थ्रेड को वीव किया जाता है क्लोथ में मशीन्स के थ्रू।
In rainy season, to protect ourselves, we wear raincoats and gumboots. Raincoats are made from a waterproof material and gumboots are made from rubber. We also use umbrellas in the rainy season to protect ourselves from rain. People wear different types of clothes in different areas of the country. The type of clothes they wear depends upon the type of weather in the region. अब रेनी सीजन में हम अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं एंड रेनकोट्स पहनते हैं. रेनकोट आपके वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं एंड आपके जो गम बूट्स होते हैं वो रबर से बने होते हैं, राइट? तो जो लोग डिफरेंट एरियाज में रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं. फैक्ट फाइल, अराउंड 25 मिलियन टन्स ऑफ कॉटन आर प्रोड्यूस्ड ईच ईयर वर्ल्ड वाइड. China, United States, Pakistan, India, Uzbekistan, Turkey and Brazil are the major cotton producers. आपको पता है हर साल 25 मिलियन टन्स जो है वो कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. एंड ये जो इतनी सारी कंट्रीज हैं ये आपकी सारी मेजर कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं. स्पेशल क्लोथ्स. Some people wear special clothes. A doctor or a nurse wears a white dress on which dirt can easily be seen. People working in factories wear overalls to prevent their clothes from becoming dirty. A soldier wears a uniform made from tough material so that it doesn't tear easily. अब देखिए स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं कुछ स्पेशल पीपल, जैसे कि डॉक्टर एंड नर्स को आपने देखा होगा वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं ताकि उसमें डर्ट इजीली दिख जाए. इसी तरह से आपके जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग वो ओवरऑल पहनते हैं ताकि उनके जो कपड़े वो डर्टी ना हो. शोल्जर्स पहनते हैं यूनिफॉर्म जो कि बहुत ही टफ मटेरियल से बना होता है जिससे कि उनकी जो यूनिफॉर्म है वो इजीली फटती नहीं है. Fact file. Factory workers wear a kind of protective clothing called overall. An overall is a single piece of clothing that covers a person from the neck to the feet. अभी जैसे आपको बताया फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ओवरऑल पहनते हैं. ओवरऑल का मतलब क्या होता है? एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग होता है जो आपको नेक से लेके फीट तक कवर करता है. A waiter wears a uniform so that he looks different from the guest. A uniform helps us to identify the profession of a person. The uniform you wear to school shows that you belong to a particular school. The teachers and security guards of the school can easily recognize you as a student and take care of you. इसी तरह से आपके जो वेटर है वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि अपने गेस्ट से डिफरेंट दिखें. एंड आप स्कूल में जाते हैं और आपको पता है कि डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट अपनी यूनिफॉर्म होती है. Sources of clothes. Have you ever wondered what clothes are made of? Clothes are made from various kinds of materials or fabrics. Fabrics are made by weaving or knitting fibers together. Fibers are long, thin threads. They can be either natural or synthetic. अब आप सोचेंगे कि कपड़े बनते किससे? एक्चुअली कपड़े आपके बनते हैं डिफरेंट तरह के मटेरियल जिन्हें कहते हैं फाइबर्स. अब आपके ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आपके सिंथेटिक भी हो सकते हैं. तो चलिए इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं. सबसे पहले है नेचुरल फाइबर्स. एज द नेम सजेस्ट, these fibers are obtained from nature. Natural fibers are obtained from the either plants or animals. Cotton, jute, linen, hemp are plant fibers, while wool and silk are animal fibers. Natural fibers, इनकी नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें ये हमें नेचर से मिलते हैं, राइट? जैसे कि आपके या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर आपको किससे मिलेंगे? एनिमल से. जैसे कॉटन, जूट, लिनन ये आपके प्लांट फाइबर्स है, जबकि वूल एंड सिल्क ये आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको मिलते हैं एनिमल से. ओके, अब आपको देखिए ये इस तरह से दिया गया है नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज. जैसे कि आपके सोर्सेज है कॉटन प्लांट से आपको कॉटन मिलता है, जूट प्लांट से जूट, फ्लैक्स प्लांट से मिलता है लिनन, शीप, गोट, कैमल से वूल एंड सिल्क वर्म से ऑब्वियसली सिल्क. Synthetic fibers. Synthetic fibers are the man-made fibers and do not occur in nature. Nylon, rayon, lycra and polyester are some examples of synthetic fibers. Synthetic clothes are strong and last for a longer time. They are wrinkle-free and do not need ironing. Synthetic clothes do not absorb water and dry quickly. However, these are not as comfortable as cotton. We should not wear synthetic clothes near the fire since they can catch fire easily. अब जो synthetic fibers होते हैं आपके ये man-made fibers होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपके सिंथेटिक फाइबर्स है. सिंथेटिक फाइबर्स आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं. ये रिंकल फ्री भी होते हैं, इनको आयनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है. बट एक इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, ना ही ये क्विकली ड्राई होते हैं और ना ही ये कॉटन की तरह इतने कंफर्टेबल होते हैं. और जब कभी भी आप फायर के पास हो तो आपको कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. Fact file. Nylon was the first synthetic fiber to be developed in 1935. The fibers of nylon are stronger and much more elastic than natural fibers such as silk. Nylon पहला सिंथेटिक फाइबर था जो कि 1935 में डेवलप हुआ था. अब जो नायलॉन के फाइबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्गर हैं एंड इलास्टिक है कंपैरेटिवली नेचुरल फाइबर्स. लेदर.
The skin of some animals is used as leather for making leather jackets, coats, shoes, belts, purses and bags. कुछ animals की skin को use किया जाता है as leather और उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बनती हैं. Clothes and culture. The types of clothes worn by people depend greatly on the climate and cultural practices of the area. For example, people of Jammu and Kashmir wear a thin-locked dress called firan. The traditional dress of Kerala is Buntu and Nediyattu. Some of these traditional clothes have become national dresses. Kimono is a national dress of Japan. Hanbok is for women of Korea and sari is a national dress of India. अब देखिए लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है या फिर उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं. जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे एक लंबी सी ड्रेस पहनी जाती है जिसे कहा जाता है फिरन. केरला में पहना जाता है मुंडू एंड निरियतु. अब कुछ ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स हैं वो कुछ नेशनल ड्रेसेस भी बन गई है, जैसे कि किमोनो नेशनल ड्रेस है कहाँ की, जापान की. हैंगबॉक जो है आपका ये कोरिया में पहना जाता है. एंड साड़ी तो ऑब्वियसली आपको पता है साड़ी तो नेशनल ड्रेस है इंडिया का. Care of clothes. To look smart, neat and tidy, we should wear clean and well-ironed clothes. We should take proper care of our clothes to keep them in good conditions for a long time. Clothes should be washed properly with a good quality detergent or soap. Clothes also need to be ironed. While keeping woolen or silk clothes, mothballs or dried neem leaves should be kept with them. This helps to keep the insect like silverfish and moths away. अब देखिए आपको स्मार्ट दिखना है तो उसके लिए आपको साफ सुथरे वेल आयरन कपड़े पहनने चाहिए. आपको अच्छे से डिटर्जेंट में या किसी भी अच्छी क्वालिटी के सोप से कपड़े धोने चाहिए एंड उनको आयरन भी करना चाहिए. आपके वुलन या सिल्क क्लोथ्स हैं तो उनमें आपको या तो मॉथ बॉल डालनी या फिर ड्राइड नीम लीव्स जिससे कि सिल्वर फिश या मॉथ दूर रहें. वी शुड मेंड क्लोथ्स दैट आर torn or broken button before wearing them. Washed and ironed clothes should be kept neatly in a cupboard. A sick person's clothes should be disinfected with antiseptic solution. Stains should be washed immediately. Well-maintained clothes make us feel comfortable and look smart. देखिए अगर आपके कपड़े कहीं पे भी थोड़े से टॉर्न हो गए हैं या बटन ब्रेक हो चुके हैं तो उसे मेंट करें पहनने से पहले. वॉश्ड और आयरन क्लॉथ्स को अपनी कबर्ड में अलग रख से रखें नीटली. सिक पर्सन के क्लोथ्स को, कोई भी बीमार पर्सन है उसके कपड़ों को पहले डिसइंफेक्ट करना है किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से. कपड़े पे कोई भी स्टेन लग जाता है उसे इमीडिएटली वॉश करना है. और वेल मेंटेन क्लोथ्स जो हैं आपको स्मार्ट दिखाते हैं. Summary. Clothes protect us from heat, cold, insect bites and make us look good. People wear different clothes according to the weather, occasion and professions. Clothes is made by weaving or knitting threads together. Clothes are made from natural and synthetic fibers. Fibers that we get from plants and animals are called natural fibers. Man-made fibers are known as synthetic fibers. We should take proper care of our clothes to keep them in a good condition for a long time. क्लोथ हमारी बेसिक नीड है जो हमारी बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं लाइक हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट्स एट्सेट्रा. अब क्लोथ्स जो हैं आपके बनते हैं फाइबर्स से, राइट. तो कैसे किया जाता है, जो थ्रेड्स होते हैं आपको उनको वीव किया जाता है या फिर निट किया जाता है. अब डिफरेंट प्रोफेशन के लोग डिफरेंट आपके क्लोथ्स पहनते हैं. क्लोथ्स आपके मिलते हैं दो तरह के फाइबर्स से, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर्स जो आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं. आपको अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और उनको हमेशा गुड कंडीशन पे रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चल सके. चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.